Hey, welcome back to my channel. Today we'll be doing the second chapter of class 12th political science, which is forms of government, unitary and federal states. So in this chapter we'll be learning about two forms of state which are divided on the basis of distribution of powers. So states are classified into two basic forms. One is a unitary state, another one is a federal state. So what do you mean by unitary state? So unitary state is a one in which all powers are in the hand of central government and local government exists at the will of the central government. Federal state. So federal state is a state where powers are distributed between central government and the state or provincial government. So let's start with unitary state first. So in unitary state, all powers are in the hand of central government, which possess everything, means legislative, executive or judicial powers. Every kind of power is in the hand of the central government. It possesses all powers and authority. तो जितनी भी powers हैं वो इसके पास है. कोई भी decision लेना है, even the power to make law for the entire state is in the hand of the central government. But now the question comes, when central government is doing everything, then what's the point of local government? Local government exist ही क्यों कर रही है? So local government exists at the will of the central government. It exercise only those powers which are given to them by the central government. कि फॉर एग्जाम्पल कोई काम है करना है, लाइक 4 काम है, अगर कहा गया लोकल गवर्नमेंट को कि गो एंड डू दीज 4 वर्क्स, तो उन्हें वही सिर्फ 4 काम करने हैं. ऐसा नहीं है कि वो 5 काम कर लेंगे या 3 काम कर लेंगे, उन्हें सिर्फ वही 4 काम करने हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है. सो इट वर्क्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज़ गोइंग टू डू द वर्क्स विच आर टोल्ड टू देम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. So I hope this much is clear to you. Let's move on to the constitution. So constitution, this can be written or unwritten. बट वॉट इज़ अनरिटन? अनरिटन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लिखा ही नहीं गया. इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट there in a proper form of book or document. Written means it is in compiled in a proper book form, कि एक proper book या document के form में available है. Unwritten is not available in that form. So why it can be unwritten? So it can be unwritten because everything is in the hand of the central government. It is going to make law for the entire state. So when it can make law for the entire state, it can change it as well. So इसीलिए written हो unwritten हो, it doesn't affect much. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट मच कि नहीं रिटन ही होना चाहिए, अनरिटन भी हो सकता है. देन कम्स यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल. But what is flexible? So flexible constitution is a constitution which can be easily amended or changed. Amended का मतलब होता है change. When it can make the law, it can change the law as well. So when central government has the power, local government का कोई interference नहीं है कि उसने बताना है कि कौन सा law change करना है, कौन सा law change नहीं करना है. सारा काम central government को करना है. So one government is going to do everything. So ये flexible है, वो change कर सकते हैं law according to themselves. So ये अनरिटन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एज वेल एज व्हेन इट इज़ अनरिटन है तो इट कैन ईजली बी चेंज्ड. व्हेन इट कैन ईजली बी चेंज देन इट इज़ फ्लेक्सिबल. So I hope you guys are understanding. Then let's move on to the next point. Next point क्या कह रहा है? The existence of all powerful central government exercising power over all the people leads to a single, stable and a strong administration. अब इसका मतलब क्या है? अब लिखा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, सिंपली कहा जाए अगर एग्जाम्पल से समझाओ तो एक गवर्नमेंट है विच इज़ रूलिंग फॉर 10 ईयर. सिर्फ एक गवर्नमेंट रूल कर रही है. तो एक गवर्नमेंट है तो कोई भी लॉ ले आएगी वो 10 साल के लिए चलेगा. कोई भी स्कीम या पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही, इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर 10 ईयर्स. तो एक स्टेबिलिटी है. बट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो इसके बाद 10 ईयर्स आते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है उस 10 ईयर्स में 4 गवर्नमेंट बन रही. अब 4 गवर्नमेंट बन रही है तो अपने अलग अलग लॉ, स्कीम्स एंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगी. तो स्टेबिलिटी नहीं है. बट यहाँ पे जब सारी पावर इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो एक स्टेबिलिटी है. वो एक लॉ और स्कीम या पॉलिसी ले आ रहा है तो वो कंटिन्यूली चल रही है. ऐसा नहीं है कि कोई चेंज कर दे रहा है या कोई इंटरप्ट कर दे रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है. और इसके एग्जाम्पल्स, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम. सो देर इज़ नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट. कि जो यूनाइटेड किंगडम में जितनी भी पावर्स है इज़ इन दी हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है. लोकल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना नहीं होता है. एंड देर इज़ अ वन सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, विथ ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल पावर.
और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंजॉय करता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब पार्लियामेंट में अगर सिंपल मेजॉरिटी से वोट कोई लॉ है वो पास हो जा रहा है तो द लॉ कैन बी चेंज्ड। तो इसीलिए ये अनरिटन और भी रिटन हो सकता है बिकॉज द पावर इज़ इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और फ्लेक्सिबल है क्योंकि ईजिली चेंज हो सकता है। देन कम्स द फेडरल स्टेट। अब फेडरल स्टेट क्या है? तो इन फेडरल स्टेट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बिना एक फेडरल स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वहाँ पे एक प्रॉपर पार्ट्स डिवाइड होती हैं कि ओके द फाइनेंस, डिफेंस, दीज आर गोइंग टू बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पॉलिसीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सो ब्रीफली इट इज़ डिफाइंड, उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है which functions are to be performed by which government. Then comes written or enacted constitution. So in a federal there is written and enacted constitution because these kind of constitution only can affect the division of power successfully. अब successfully कैसे? अगर हम power लिख के नहीं देते हैं कि हाँ these are the function which are to be performed by central government and rest of them will be performed by the state government, अगर हम ऐसा नहीं बताते हैं कौन सा काम किसने करना है तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स वाई रिटन एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इसेंशियल फीचर है ऑफ फेडरल स्टेट। देन कम्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिजिड है। इन द UK1 और यूनिटरी स्टेट वी सॉ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्लेक्सिबल, बट ओवर हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है दैट इट कैन नॉट बी चेंज ईजली। एक प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, प्रॉपर आर्टिकल्स हैं विच आर टू बी फॉलोड टू चेंज द law, exiting law। और then comes dual administration। अब dual administration है क्या? So the federation is characterized by dual administration। एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो एक इंसान जो एक फेडरल स्टेट में रह रहा है वो दो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहता है, दो रूल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रहता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स भी वो फॉलो करता है, सेकेंडली स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल वो फॉलो करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। Then equality of all federating state। अब equality of all federating state means that कि every state of federations are equal and without any consideration of size, population and resources। ये तीन word बहुत important है, which is size, population and resources। For example अगर हम इंडिया का लेते हैं, MP, UP, राजस्थान, ये सब बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं। ऑन दी अदर हैंड हम बाकी केरला, तमिलनाडु, गोवा, अगर हम ये सब देखते हैं तो ये बहुत ही छोटे स्टेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं तो हम उनको कम इंपॉर्टेंस देंगे, कम रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, पॉपुलेशन कम है तो हम उसको इम्पॉर्टेंस ही नहीं देंगे, सारा इंपॉर्टेंस हम राजस्थान, MP और UP को दे रहे हैं। हमारे लिए इंडिया के सारे स्टेट्स इक्वल हैं। सो वही चीज़ ये कह रहा है कि फेडरल स्टेट का जो एक वन ऑफ द बेसिक फीचर हम कहें वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल फेडरेटिंग स्टेट। एवरी फेडरेटिंग स्टेट इज़ इक्वल। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है या कहीं पॉपुलेशन कम है तो हम इनइक्वालिटी करें, हम कहें कि नहीं इसमें रिसोर्सेज कम है तो हम इतना फोकस नहीं देंगे, यहाँ पे ज़्यादा पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। सो ऐसा नहीं है। देन कम्स द डुअल सिटीजनशिप। अब डुअल सिटीजनशिप व्हेन वी आर अंडर डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम दो गवर्नमेंट के अंडर हम अपना रूल फॉलो कर रहे हैं, तो उसी तरह हमको सिटीजनशिप भी दो मिलती हैं कि वन ऑफ द होल स्टेट एंड सेकंड वन ऑफ द स्टेट इन विच द पर्सन इज़ लिविंग। एक स्टेट की जिसमें वो रह रहा है एंड एक पूरे कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है। Then came the bicameral legislature। Bicameral legislature means a government in which there are two houses. One is the upper house and another one is the lower house. For example, in India, Rajya Sabha and Lok Sabha. Then last one is impartial and supreme judiciary. Constitution is rigid, enacted, written, powers are briefly defined. Everything is there. But who is going to protect it? This thing is given to the judiciary. Judiciary protects the constitution and it exercises its power to decide or to solve the disputes between the central or the state government, or any kind of disputes are there between a government or one state or between two states. Everything is decided or solved by the judiciary only. So the working of federation always involves the possibility of disputes। हमेशा disputes of jurisdictions हो जाते हैं सेंटर्स और स्टेट में। So that this thing is solved by
the judiciary. Just for example, the supreme judiciary is Supreme Court, High Court, Civil Court, District Courts. ये सारे courts हैं to protect the constitution. जो constitution की supremacy है वो maintain रहे. अब इसके example जो है USA and Australia. एंड नाउ अ क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि कुछ फीचर्स जो अभी फेडरल स्टेट के ये मोस्टली तो इंडिया में भी होते हैं, तो इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है फेडरल स्टेट का. इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट. इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है जिसके अंदर यूनिटरी स्टेट के भी फीचर हैं और फेडरल स्टेट के भी फीचर हैं. सो द एग्जाम्पल फॉर फेडरल स्टेट आर USA एंड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, डोंट गेट कन्फ्यूज. इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं, उसमें यूनिटरी स्टेट के भी कुछ फीचर्स हैं. इसने दोनों का एक मिक्स्ड फॉर्म ले लिया, दैट्स वाई we call it quasi-federal state. I hope this much is clear to you, and if you found the video useful, then do like, share and subscribe.